Did we start with this prove that type of question? ये जो है question number 3rd का 6th हुआ था. Okay, so that means this question was done, right? So this question was the last that we had done. 3rd question 6th sum. ठीक है, so अगर यहाँ तक हो गया है, let us continue then. Okay, so yeah, we are almost like at the same pace of offline lecture also. So online में अगर इतना हो गया है तो you can see what is written in the 7th question. X is equal to sin inverse of e raised to t. Y is equal to root of 1 minus e raised to 2t. We have to show that sin x plus dy by dx is equal to 0. ये question बाकी question से काफी ज्यादा easy है. Okay, it isn't that difficult. Okay, so the question that is written over here, 3rd question 7th sum. Okay, ये फिर से आज. So 3rd question 7th sum. Okay, so what is written over here is, हाँ वो मैंने एक्चुअली कैमरा स्टार्ट करना था इसके लिए. तो 3rd question जो 7th sum है. ओके, so it is x equal to sin inverse of e raised to t, y equal to root of 1 minus e raised to t. So x equal to sin inverse of e raised to t and y equal to root of 1 minus e raised to 2t. So this is what is the given question. y equal to x equal to, इससे वैल्यू दिया हुआ है. So x equal to sin inverse of e raised to t, y equal to root of 1 minus e raised to 2t, and we have to show that, okay, sin x plus dy by dx is equal to 0. Of course ये बहुत ही easy question है. sin x plus dy by dx equal to 0 prove करना from this given term, because यहाँ पे जो है हम लोग को जब एलिमिनेशन करना है, so that happens very very easily. Okay, तो इसे सी यहाँ पे e raised to t है. Okay, and same way यहाँ पे भी we have a term of e raised to t. तो यहाँ पे कुछ तो एक कॉमन टर्म है. लेट अस यूज दैट टू एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ t इटसेल्फ. तो यहाँ पे से साइन इनवर्स का टर्म को हम लोग इस तरफ लेके आते हैं. ठीक है, सो साइन इनवर्स को हम लोग एक तरफ लेके आते हैं. ऑब्वियसली साइन एक्स विल बिकम, ठीक है, e raised to t, ऐसे हो जाएगा. So value of sin x is equal to e raised to t. So y equal to हो जाएगा, this is root of 1 minus. अभी e raised to 2t को मैं क्या लिख सकता हूँ? Okay, I can write it as e raised to t का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ. So this is root of 1 minus e raised to 2t का स्क्वायर. So this is now root of 1 minus, correct? So instead of e raised to t we can write it as sin x, correct? तो यहाँ पे इसको sin x करके लिख सकते हैं. So ये sin square x हो जाएगा. So y equal to root of 1 minus sin square x. Obviously यहाँ पे आएगा, this is root of cos square x and root of cos square x हो जाएगा, that is cos x. So अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, करेक्ट? So y equal to cos x करके हमने ला दिया है. We just have to differentiate this. So differentiating this with respect to x, so dy by dx will be equal to derivative of cos x, that is equal to minus sin x. फिर ये माइनस साइन को हम लोग इस तरफ लेके आएंगे, ऑब्वियसली आंसर आ जाएगा sin x plus dy by dx equal to 0. So this was like quite easy question. ठीक है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं था. इसमें एलिमिनेशन भी बहुत इजीली हो गया और उसका डेरिवेटिव जो हम लोग को प्रूव करना था वो भी काफी इजी था. सो दिस इज द आंसर फॉर अस. dy by dx इज माइनस sin x था, इसके लिए sin x plus dy by dx is equal to 0. Is this question clear for everyone? So if you have gone through the formulas, okay, from the previous lectures जो भी हम लोग ने पहले किए हैं वो सब अगर मेथड देखा है, formulas, if you are reading the formulas regularly, then you should be able to understand these questions quite easily. Okay, so this
was quite an easy question. So third का 8, अब ये थोड़ा सा different है. Okay, I won't say like this is very difficult or anything. काफी like हम लोग आराम से कर सकते हैं. You can see what is the question written over here. X is equal to 2b into t upon 1 plus t square. Y equal to a into 1 minus t square upon 1 plus t square. We have to show that dx upon dy is minus b square y upon a square x. Okay. Try and use the question answer section, everyone. Okay. Individual chat state करने में काफी time जाएगा. So x equal to 2b t upon 1 plus t square, y equal to a into 1 minus t square upon 1 plus t square. ये दो जो है x और y का वैल्यू दिया है. We have to show that dx upon dy. Okay. So just देखो आप क्या लिखा है. dx upon dy is minus b square y upon a square x. Okay. So what is x equal to? Okay. So x equal to क्या दिया है? This is 2b into t upon 1 plus t square. And y equal to क्या दिया हुआ है? This is a into 1 minus t square upon 1 plus t square. So x and y is given to us. We have to show that dy by dx, okay, sorry, dx upon dy, ये जो वैल्यू है ये हम लोग को आएगा. दिस इज माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन ए स्क्वायर एक्स. सो फर्स्ट दिस कैन बी इजीली सॉल्व्ड बाय एलिमिनेटिंग द वैल्यू ऑफ टी. करेक्ट. सो नाजरीन ने भी यहाँ पे बताया, शी कैन सी दैट दैट इज अ फॉर्मूला ओवर हियर 2bt upon 1 plus t स्क्वायर. इसमें से अगर ये b को यहाँ से मैंने हटा दिया किसी तरीके से, ऑब्वियसली आई कैन राइट इट इज x अपॉन b इक्वल टू, so this is 2t upon 1 plus t square. So this becomes a formula for sin 2 theta. And ये जो है y upon a, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 minus t square upon 1 plus t square. Correct. So ये जो है 2t upon 1 plus t square, I think that is what Nazreen was saying, that sin 2t, okay, हम लोग वहाँ पे अरेंज कर सकते हैं. tan theta हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. So Yash is saying that if we substitute t is tan theta, तो 2 tan theta upon 1 plus tan square theta sin 2 theta हो जाएगा. ये जो सेकेंड पार्ट है यहाँ पे 1 minus t square upon 1 plus t square, this is corresponding to what formula? 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. कौन से फॉर्मूला से correspond करेगा? सोच के बताओ. Correct. That is formula for cos 2 theta. So after substitution, okay, नाजरीन और यश ने बताया कि ये जो फॉर्मूला है that is cos 2 theta. जय ने भी बताया 1 minus t square upon 1 plus t square, that is cos 2 theta. So if you observe in this case, यहाँ पे जो है x upon b, थोड़े टाइम के बाद में ये क्या हो जाएगा? sin 2 theta. And y upon a, ये जो है थोड़े टाइम के बाद में बन जाएगा cos 2 theta. Correct. After substitution of tan theta, I should be getting somewhat like this. अब सोच के देखो, अगर मुझे ये sin 2 theta और ये cos 2 theta को यहाँ से अगर eliminate करना है, so that would be not just adding, it would be squaring and adding both the equations. Correct? So sin square 2 theta plus cos square 2 theta, ये वैल्यू को क्या हो जाना चाहिए? This should become 1. तो ये x square upon b square plus y square upon a square का वैल्यू 1 हो जाएगा. Correct. So by the discussion that we are doing over here, we can understand that I can convert x upon b into sin 2 theta and y upon a into cos 2 theta. Sin square 2 theta plus cos square 2 theta will become 1. वो सब हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं. करेक्ट. इसमें किसी को डाउट है यहाँ तक? Did you all understand what we are trying to like go, like किस डायरेक्शन हम लोग इस सम को लेके जा रहे हैं? ओके. बट अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक अलग चीज करके बताता हूँ. Now it is very clear that I can substitute 2t upon 1 plus t square, 1 minus t square upon 1 plus t square. वो सब के लिए मैं tan theta वगैरह सब्स्टिट्यूट करूंगा and that can be solved very easily. But the final idea is this term over here, ये sin 2 theta है और ये जो टर्म यहाँ पे है ये cos 2 theta है. Okay, so this term over here is cos 2 theta. So एक टर्म sin 2 theta है और दूसरा टर्म cos 2 theta है.
और ये कैसे एलिमिनेट होगा? बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होना चाहिए, करेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग एंड देन स्क्वायरिंग एंड एडिंग, मतलब उसमें फॉर्मूला डालो और सब करो, एक बात तो क्लियर है कि भाई ये साइन है और ये वाला कॉस है, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग अगर मैंने अभी भी किया तो भी मुझे आंसर 1 आना चाहिए, ओके। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशंस, so why should I waste my steps if I know that I can still get 1? तो मैंने इसको स्क्वायर किया और ऐड किया, सो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग किया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, सो दैट विल बी 4t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। सो ये ऐसे हो जाएगा, करेक्ट। तो मैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर रहा हूँ बिकॉज अगर साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा 1 है तो यहाँ पे भी इनका एडिशन 1 ही होना चाहिए, करेक्ट। मेक सेंस, ये आगे जाके साइन 2 थीटा बनेगा, कॉस 2 थीटा बनेगा और फिर बाद में 1 बनेगा। तो यही पे करके देखते हैं, इनका 1 क्यों नहीं हो सकता, ऑब्वियसली 1 होना चाहिए इसको भी, करेक्ट। सो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू, ओके, सो 4t स्क्वायर प्लस, अभी इसको मैं एक्सपांड करता हूँ, 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t रेज टू 4 अपॉन ये जो हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो 4t स्क्वायर है माइनस 2t स्क्वायर है, 4t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली दैट विल बिकम 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर हो जाएगा। एंड डिनोमिनेटर का जो टर्म है मैं उसको भी एक्सपांड करके लिखता हूँ, ठीक है। सो डिनोमिनेटर में भी है 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज 1 प्लस, ओके, 1 प्लस ऑब्वियसली 2t स्क्वायर प्लस टी रेज टू 4 हो जाएगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर किया है। सो दिस एंटायर टर्म एट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल कैंसिल, तो पूरा ही टर्म्स कट हो गया, तो हमको क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। सो लाइक वी हैड, लाइक सम में ही स्टार्ट में ही बताया था कि हमको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने पे 1 आना है, तो वो तो कैसे भी हो 1 ही आना है, करेक्ट। तो यहाँ पे ही मैंने स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दिया, आई डिड नॉट सब्स्टिट्यूट एंड रीसब्स्टिट्यूट और वो सब नहीं किया है मैंने, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बाद में करने का पहले ही कर दिया। So I can get now the term says x square upon b square plus y square upon a square equal to 1. तो ये मेरा स्टेप है अभी फिलहाल। Now let us just differentiate this with respect to x. Correct? तो इसका हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करते हैं with respect to x. So x square का डेरिवेटिव, of course 1 by b square is a constant. So x square का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x plus 1 upon a square will again be a constant. y square का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y dy बाय dx इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब ये टर्म को मैं इस तरफ लेके आता हूं, करेक्ट। सो आई विल गेट 2y अपॉन a स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन b स्क्वायर। ऑफ कोर्स 2 and 2 कैन बी कैंसल्ड, तो यहाँ पे से हम लोग ने 2 और 2 को क्या कर दिया, कट कर दिया। अब ये dx अपॉन dy जो है इसे मैं रेसिप्रोकल में करके लिखता हूं, बिकॉज अपने आंसर में हमको वही चाहिए था, dx अपॉन dy। अब ये बी स्क्वायर जो है ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये किसके साथ आएगा, y के साथ। सो विल गेट माइनस बी स्क्वायर y, ये जो माइनस है वो भी यहाँ पे LHS में लिख रहा हूँ, एंड इसके साथ में आएगा a स्क्वायर x। सो यू कैन सी व्हाट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू, इट वाज द सेम वैल्यू, dx अपॉन dy इज माइनस बी स्क्वायर y अपॉन a स्क्वायर x। सो ये जो था यही हमको प्रूव करके बताना था, ठीक है। सो जस्ट पहले हम लोग को क्या आ रहा था, थोड़ा सा अरेंजमेंट में dx अपॉन dy RHS पे आ रहा है, बट इट इज द सेम थिंग, dx अपॉन dy का वैल्यू हम लोग को क्या आ रहा है, इट इज माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर y अपॉन a स्क्वायर x। सो दैट इज द वैल्यू दैट वी वांटेड आल्सो, हम लोग को वही आ रहा है। इज दिस क्लियरली अंडरस्टूड बाय एवरीवन?
सो यहाँ पे हमने स्क्वायरिंग एंड एडिंग क्यों किया, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है, वो हम लोग को पता था, बट वी डिड नॉट लाइक सब्स्टिट्यूट इट एज tan थीटा, स्टेप्स वेस्ट नहीं किया। ओके, लास्ट स्टेप में फिर से एक बार देखो, इफ यू वांट यू कैन जस्ट राइट इनवर्ट एंड ऑल्सो। ओके, तो प्रीवियस पेज का लास्ट स्टेप। सो प्रीवियस पेज के लास्ट स्टेप में आप यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, देखो 4t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, करेक्ट। सो वी हैव दिस 4t स्क्वायर एंड दिस माइनस 2t स्क्वायर। ओके, तो 4 माइनस 2 करने पे आपको प्लस 2t स्क्वायर बचेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे मेरे टर्म्स में क्या बच गया था, आई एम हैविंग दिस 1 प्लस 2t स्क्वायर प्लस ऑब्वियसली जो t रेज़ टू 4 था वो, and at the denominator I am using the formula for a plus b the whole square, that is a square plus 2ab plus b square. Obviously ये पूरा terms कट हो जाता है, that is why we are getting 1. Second last step, यहाँ पे आपको a minus b the whole square यूज किया है. In the second part in this fraction over here, I am using a minus b the whole square. So what is a minus b the whole square? It is a square minus 2ab plus b square. एंड डिनोमिनेटर तो दोनों का ही सेम था, तो इसके लेके वाले। सो a माइनस बी द होल स्क्वायर आप करके देखो 1 माइनस टी स्क्वायर के साथ, सो विल गेट 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t रेज़ टू 4, ऐसा वैल्यू आएगा। इज दिस क्लियर नाउ एवरीवन? सबको ये समझ में आया है? So with this we have finished with the 1.4 exercise as well. ठीक है, तो जो अपना 1.4 है वो भी हम लोगों ने फिनिश कर लिया। तो लाइक आई हैड सेड कि अपना जो चैप्टर है 1.1 और 1.2 के लिए काफी टाइम लगता है। वंस दैट इज डन, the other exercises like it just flows through. Okay, it doesn't take much time to like finish with the entire. We have one more question over. अच्छा, एक और टाइप का सम बाकी था, राइट? स्टिल चलेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन 4 बाकी है। माय मिस्टेक, एक और क्वेश्चन बाकी है यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या लिखा है, डिफरेंशिएट x sin x विद रिस्पेक्ट टू tan x। ओके, इसका मैं छोटे से डिस्कशन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, we are supposed to differentiate x sin x with respect to tan x. Okay, you can clearly understand when I am saying कि we have to derivate या differentiate y with respect to x, तो हम लोग उसको dy by dx लिखते हैं, correct? If I have to differentiate u with respect to x, obviously we will write it as du by dx. यहाँ पे हम लोग को बोला है डिफरेंशिएट x sin x विथ रिस्पेक्ट टू tan x, तो हम लोग को ये है जो फाइंड करना है, x sin x का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू tan x। सो ऑब्वियसली इसको हम लोग को कैसे करना चाहिए? ओके, तो इफ आई ऑब्जर्व दिस प्रॉपरली, आई हैव टू डिफरेंशिएट x sin x विद रिस्पेक्ट टू tan x। हम लोग पैरामीट्रिक टाइप का सम कर रहे हैं, करेक्ट? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये एक टर्म को, इस टर्म को मैं u कंसिडर करूंगा और ये वाले टर्म को मैं v अगर कंसिडर करूं, तो व्हाट माय क्वेश्चन सेज इज टू फाइंड du अपॉन dv। ओके, अपना जो क्वेश्चन है वो क्या है, इट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ du अपॉन dv, करेक्ट? तो हमको du अपॉन dv फाइंड करना है, एंड व्हाट इज du अपॉन dv इक्वल टू, ओके, सो दिस इज इक्वल टू du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx। Is this point clear for everyone? हमको कोई एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फंक्शन, सो दैट वुड बी like finding du upon dv, and what is du upon dv? It is du upon dx upon dv by dx. तो यहाँ पे आप देख सकते हो
या डेरिवेटिव ऑफ u with respect to x upon derivative of v with respect to x. So I can write this as derivative of x sin x. करेक्ट. तो इसको मैं अलग से फाइंड करूंगा और इसको भी मैं अलग से फाइंड करूंगा. ओके, so that I can get this as my required answer. So derivative of x sin x with respect to tan x हम लोग इस तरीके से करते हैं. ओके, so derivative of x sin x with respect to tan x, that is nothing but finding du by dv where u and v का टर्म्स हम लोग को पता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है. ओके, सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द क्वेश्चन. होपफुली द एक्सप्लेनेशन पार्ट इज क्लियरली अंडरस्टूड. बाकी के सारे सम्स में भी हम लोग यही करने वाले हैं. सो आप हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेट u बी इक्वल टू x sin x, v बी इक्वल टू tan x. ओके, सो u का वैल्यू क्या है, दैट इज x sin x, v का वैल्यू क्या है, tan x. हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस एज इफ इट इज अ पैरामेट्रिक फंक्शन. सो डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x, आई कैन से व्हाट इज du by dx. करेक्ट. तो यहाँ पे होगा u इंटू v का फॉर्मूला होगा. सो दैट इज x डेरिवेटिव ऑफ साइन x प्लस साइन x डेरिवेटिव ऑफ x. तो यहाँ पे हम लोग ने u इंटू v का फॉर्मूला को यूज किया. सो जस्ट कीप द फॉर्मुलास इन फ्रंट ऑफ यू. अगर आपको नहीं याद है तो फॉर्मुलास देखते रहो. लाइक आई कैन सी मेनी स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग द ऑफलाइन लेक्चर्स. वहाँ पे से समझ में आ जा रहा है कि क्वाइट अ फ्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग द ऑनलाइन लेक्चर्स आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट देयर स्टडीज. दे डोंट इवन लाइक गो थ्रू द फॉर्मुलास ऑल्सो. वो तो समझ में आ रहा है. Okay, hardly few of the students who are attending the offline lectures answer the questions properly. So that means they have never like bothered to study the formulas also. So इतना भी hardly कुछ मेहनत किया है. There are very few students like can be counted in my fingers also. उतना सा ही बस कुछ students है जो शायद थोड़ा effort लेके थोड़ा पढ़ाई कर रहे हैं. But बाकी के most of the students those who are like I can see like those who are attending the online lectures. यहाँ पे भी most probably जो लोग अभी attend कर रहे हैं, काफी सारे जन ने तो जस्ट लेक्चर ऑन किया होगा और ऐसे ही रख दिया होगा शायद से बस. आई डोंट थिंक दे आर इवन बॉदर्ड टू लाइक व्हाट इज हैपनिंग. वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एक्चुअली लाइक पुटिंग इन देयर एफर्ट्स स्टडिंग. ओके, सो यहाँ पे तो दिख रहा है मुझे, इट इज वेरी एविडेंट कि काफी लोग यहाँ पे कुछ ध्यान भी नहीं देते हैं. बट देन दैट इज योर लॉस ऑफ कोर्स. ठीक है, जो नुकसान है वो आपका ही होगा. सो if you are studying, it is your benefit. If you are not studying, it is your loss. So no doubt. Okay. so यहाँ पे जो है du by dx का वैल्यू है, dv by dx का वैल्यू भी हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं. dv by dx का वैल्यू क्या होगा, दैट इज x स्क्वायर x. ओके, tan x का डेरिवेटिव बेसिकली. सो भी हमको क्या चाहिए, दिस इज du by dv. so what is du by dv equal to, so that is du by dx upon dv by dx. Okay, so du by dx का वैल्यू क्या था, that was found in this part. So this is x cos x plus sin x upon derivative of tan x, that is x square x. So ये अपना du by dv का टर्म है. Okay, x cos x plus sin x upon x square x. Okay, so यही बस अपना सिंपल सा आंसर था. ओके, या सो यश ने जो दिया है दैट इज x cos x plus sin x अपॉन x पर x. तो काफी सिंपल क्वेश्चन था. आगे भी जो इस टाइप के सम्स हैं उसमें हम लोग यही करेंगे. एक पार्ट को u लेंगे, दूसरे पार्ट को v लेंगे और उसको डेरिवेटिव करके डिवाइड करेंगे. फाइनल एग्जाम्स होगा, या ऑफ कोर्स बोर्ड्स का एग्जाम तो होना चाहिए. इट इज नॉट पॉसिबल कि लाइक एवरी ईयर द स्टूडेंट्स विल बी पास्ड आउट and finally like there is something, some level of education that is expected from the students, right? So वो level पे तो आपको कभी ना कभी तो आना ही है. Okay, so even if you are like maybe like पिछले साल जो students pass out हो गए थे, but obviously when they are supposed to take some admission in some colleges and all, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ entrance होता है. If you are not studying at all, okay, obviously वहाँ पे आप clear नहीं कर पाओगे. So somewhere or the other you have to put in your efforts. ठीक है, so you cannot like
गेट द बेनिफिट्स एवरी ईयर, राइट। तो कहीं ना कहीं पे तो आपको कभी ना कभी तो आपको स्टडी करना ही है, जितना जल्दी करेंगे उतना बेटर होगा। ओके, so the second question over here, you can see that differentiate sin inverse of 2x upon 1 plus x square with respect to cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square। अगेन हम लोग अभी ये तो आपको पता है कि इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करके ही कर सकते हैं, करेक्ट। सो दिस इज नॉट समथिंग लाइक वी कैन लाइक अवॉइड सब्स्टिट्यूशन ऑफ, करेक्ट। तो एक को हम लोग u लिखेंगे, एक को हम लोग v लिखेंगे, एंड देन वी कैन डिफरेंशिएट द, पहले हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन देखो, फोर्थ का सेकंड। सो दिस इज x इक्वल टू, लेट u इक्वल टू so let u equal to sin inverse of 2x upon 1 plus x square, okay, and v equal to cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square, okay। so ये जो है आपका क्वेश्चन है, भी सोच के देखो यहाँ पे आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है। इफ यू आर सेइंग 2x upon 1 plus x square and 1 minus x square upon 1 plus x square, करेक्ट। तो यहाँ पे हमको x का वैल्यू tan थीटा सब्स्टिट्यूट करना होगा, करेक्ट। सो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि हमारा फिर फॉर्मूला कंप्लीट होगा, दैट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो ये सारे फॉर्मूलास अगर हमको कंप्लीट करना है, सो वी विल हैव टू सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू tan थीटा, करेक्ट। तो यहाँ पे आई विल से लेट x बी इक्वल टू tan थीटा, करेक्ट। तो ये tan इस तरफ आ जाएगा, x के साथ आ जाएगा, विल गेट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। ये हम लोग ने क्यों किया, बिकॉज डेरिवेटिव करने से पहले हमको रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, करेक्ट। तो यहाँ पे अभी अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, u इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके। सो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सोच के बताओ ये किसका फॉर्मूला है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया था। दिस इज फॉर्मूला फॉर साइन 2 थीटा, करेक्ट। सो सुमित, पुनीत, यश, जय सबने आंसर किया है। दिस इज, नाजरीन ने भी इसका आंसर किया, दिस इज साइन 2 थीटा। तो साइन साइन इनवर्स के साथ कट हो जाएगा एंड यू विल गेट, यस, यश का आंसर पूरा फाइनल आंसर जो बताया यश ने वो राइट है, दैट इज 1। सो u का वैल्यू जो आपको आएगा दैट इज 2 थीटा। सो यहाँ पे भी हम लोग थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो दैट इज tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। सो थीटा का वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो, tan इनवर्स ऑफ x, ओके। सो अभी इसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो विल गेट du बाय dx इज इक्वल टू 2 इंटू, अभी tan इनवर्स का डेरिवेटिव डालोगे आप, सो दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये du बाय dx हो गया, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 1 करके, ओके। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट पार्ट, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हमने कैसे किया है, यहाँ पे x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया tan थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो हो गया साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन के साथ कट हो जाएगा, फिर 2 थीटा आएगा एंड 2 tan इनवर्स ऑफ x, फिर आप डेरिवेटिव करोगे, सो दैट इज 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज du बाय dx इज 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट का हमने कर लिया, अभी ऐसे ही हम लोग ये सेकंड पार्ट के लिए v इक्वल टू के लिए भी करेंगे, सो दैट इज cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, दैट इज फॉर cos इनवर्स ऑफ, तो v इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ पे भी हम लोग x के लिए tan थीटा ही यूज करने वाले, okay। So obviously I don't have to write it once again because it is the same substitution that I'll be using. So tan theta, okay, जो हमने फर्स्ट पार्ट के लिए यूज किया वही यूज करना है। So it is 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta.
तो बी ए किसका फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन, करेक्ट। तो नाजरीन ने इसका आंसर बताया है, जय सुमित पुनीत सब ने इसका आंसर बताया है, वेरी गुड। सो दिस इज cos 2 थीटा। So cos inverse of cos 2 theta. So cos and cos inverse will cancel and V is equal to, we will get 2 theta. Of course this is 2 tan inverse of x that we are getting. ठीक है, so यहाँ पे V का वैल्यू आपको क्या आएगा 2 tan inverse of x. अभी इसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. So we will get dV by dx is equal to 2 into derivative of tan inverse that is 1 upon 1 plus x square. So ये हमारा dV by dx, if you want you can write it as equation number 2. बट अभी तक हमारा आंसर नहीं हुआ, हमको क्या करना था इसमें, वी हैड टू फाइंड du by dv. So what is du by dv? That is du by dx upon dv by dx. Okay, right. So अभी यहाँ पे पहले पार्ट में भी हमको यही आंसर आया था, इट इज 2 upon 1 plus x square. And second part में भी हमको वही आया, this is 2 upon 1 plus x square. So obviously the entire terms will cancel from this and the final derivative that we are going to get is 1. So derivative of sine inverse of 2x upon 1 plus x square with respect to cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square will come out to be equal to 1. तो ये अपना du by dv का टर्म है 1. करेक्ट. सो आई थिंक पुनीत जय इन सबको भी इसका आंसर करेक्ट आ गया. सो दीज आर नॉट दैट डिफिकल्ट क्वेश्चंस. आइडिया तो क्लियर है कि हमको एक पार्ट को u लेना है, दूसरे पार्ट को v, so that we can find du by dv, and that is the question. We have to find derivative of one function with respect to another function. But these are all 4 mark questions. ठीक है, almost all of this type of questions are of 4 marks. तो पैरामेट्रिक में ये टाइप के क्वेश्चंस जो है जिसमें हमको एक सब्स्टिट्यूट करना है, दूसरे को मतलब एक को एज्यूम करना है, दूसरे को भी एज्यूम करना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करके डिवाइड करना है, दैट एक्चुअली कैरीज 4 मार्क्स. मतलब जो थोड़ा डिफिकल्ट वाले, थोड़े सिंपल वाले होंगे तो ऑब्वियसली दैट विल कैरी लेसर मार्क्स, 3 मार्क्स. बट ये 3 या 4 मार्क्स का ही सम्स ये सब होगा. ओके, मोस्टली जब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं and these come for the exam, so they are generally coming for 4 marks only. ये जो बड़े वाले हैं वो जनरली आंसर में मतलब क्वेश्चंस में बोर्ड्स में आएंगे. Okay, so that is what we can say in this exercise. This question 4 will carry quite a good amount of importance, but इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए. Like what I have said previously also, ये सब एक ही टाइप के सम्स है. अगर मैंने थर्ड क्वेश्चन देखा, फोर्थ क्वेश्चन देखा, all this can you see that all of this are almost the same thing. Okay, ये सब वही चीज हो रहा है, बस बार बार हमको डेरिवेटिव एक फंक्शन का करना है विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन. सो दिस इज एग्जैक्टली द सेम, या जस्ट लाइक पैरामेट्रिक. ओके, सो लास्ट टाइम हमने जो पैरामेट्रिक एक्सरसाइज 1.4 जब स्टार्ट किया था तो पूरा पैरामेट्रिक के ऊपर ही बेस्ड था. सो दिस इज ऑल्सो लाइक द पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन ओनली. ओवर हियर द पैरामीटर इज एक्स. ओके, u और v हमारा फंक्शन है. So the derivative is happening of like by the methods of derivative of parametric functions. So let us understand this question also. Differentiate tan inverse of x upon root of 1 minus x square, sec inverse of 1 upon 2x square minus 1. तो ये हम लोग एक बार इसका डेरिवेटिव देखते हैं. So third question, we have to find the derivative of tan inverse of x upon root of 1 minus x square with respect to sec inverse of 1 upon 2x square minus 1. Okay, so differentiate tan inverse of x upon root of 1 minus x square with respect to sec inverse of 1 upon 2x square minus 1. So ये अपना क्वेश्चन है. Okay, so how do we differentiate this? Correct. तो यहाँ पे obviously हमको सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए. तो इफ यू रिमेंबर वी हैड seen this type of questions previously. Okay, so ऐसे टाइप के सम्स में मैंने बताया था कि आपको सब्स्टिट्यूट क्या करना चाहिए, राइट. सो उसका एक टेबल था यहाँ पे. इफ यू जस्ट रेफर दैट टेबल यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टू बी सब्स्टिट्यूट. करेक्ट, यश ने इसका फाइनल आंसर बता दिया, इट इज -1/2. ओके, बट बाकी के स्टूडेंट्स आप लोग एक बार ध्यान दो व्हाट इज रिटन ओवर हियर. So those students who are putting in their effort, practicing very well, obviously you can see that they are able to solve these questions like
even without my help. एक बार आपको आइडिया आ गया है, you can just solve the questions quite easily. But if you have not practiced the questions, not studied the formulas, not gone through the trigonometric formulas and all, तो obviously आपको खुद से करने में प्रॉब्लम होगा. इनफैक्ट मेरे पढ़ाने के बाद में भी आपको खुद से करने में प्रॉब्लम होगा. सो एफर्ट्स तो आपके तरफ से आने चाहिए. सो इवन इफ आई सॉल्व 8 क्वेश्चन और 80 क्वेश्चन, अगर आपने एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किया है, it really does not matter how many I have solved. Okay, so see to it that you are practicing on your side, because that is what really matters actually. Okay, हाँ, anyway यहाँ पे भी देखो क्या लिखा है. we have tan inverse of x upon the root of 1 minus x square. ये जो टर्म है, करेक्ट, रूट ऑफ 1 minus x square. एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे we have 2x square minus 1. करेक्ट. तो यहाँ एक में है रूट ऑफ 1 minus x square और एक में है 2x square minus 1. तो भी यहाँ पे देखो आप रूट ऑफ 1 minus x square, ये एक्चुअली गलत है, यहाँ पे 1 plus x square होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है. बट रूट ऑफ 1 minus x square, यहाँ पे क्या है, दिस इज x इक्वल टू साइन थीटा और x इक्वल टू कॉस थीटा. करेक्ट. तो ऐसे केस में रूट ऑफ 1 minus x square आने पे आई कैन आइदर यूज साइन थीटा और कॉस थीटा. ठीक है. अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 2x square minus 1. करेक्ट. दिस पैटर्न इज ऑल्सो देयर इन द क्वेश्चन. ये पैटर्न आने पे वी हैव टू सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू कॉस थीटा ओनली. तो अब सोच के देखो, मुझे दोनों पार्ट के लिए कॉमन अगर रखना है, व्हाट शुड आई सब्स्टिट्यूट. ओके, इफ आई एम सेइंग लाइक आई हैव टू सॉल्व द फर्स्ट पार्ट, लेट u be equal to tan inverse of x upon the root of 1 minus x square. ओके, तो उसके बाद मुझे x इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए. लेट x इक्वल टू व्हाट, cos. करेक्ट. सो ये डिस्कशन हम लोग को ये समझाने, मतलब आपको ये समझाने के लिए था कि वी शुड सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू कॉस थीटा, बिकॉज दैट इज कॉमन इन बोथ द फॉर्मूलास. अगर आपने साइन सब्स्टिट्यूट किया फर्स्ट पार्ट के लिए और दूसरे पार्ट के लिए अगर आप कॉस सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो तो भी कोई गलत नहीं. नो डाउट यू कैन सब्स्टिट्यूट वन पार्ट एज साइन, द अदर पार्ट एज कॉस. इट रियली डज नॉट मैटर. अगर आपने ऐसे सब्स्टिट्यूशन करना है तो आप कर सकते हो, कोई गलत नहीं है. आपका आंसर में भी कोई चेंज नहीं होगा. यू विल स्टिल गेट द करेक्ट आंसर. But I will keep x equal to cos theta only. Okay. So I would prefer to keep x equal to cos theta because दोनों ही parts में मुझे जो है cos theta common दिख रहा है. So root of 1 minus x square में भी cos theta है, इस part में भी root of 1 minus x square में भी cos theta है, and 2x square minus 1 में भी cos theta का फॉर्मूला यूज हो सकता है. So both the parts can have the same value if I use x equal to cos theta. So obviously यहाँ पे next हम लोग को क्या लिखना है, थीटा का वैल्यू क्या होगा. So थीटा will be cos inverse of x. ठीक है. So ये बाद में हम लोग को रीसब्स्टिट्यूशन करने के लिए काम आएगा. So I can say now the term of u is tan inverse of x की जगह पे क्या होगा, this is cos theta upon the root of 1 minus cos square theta. ऐसे हो जाएगा. So what is root of 1 minus cos square theta? Obviously yes, that is sin square theta. फिर इसका रूट निकालेंगे तो वो sin theta हो जाएगा. करेक्ट. So this is equal to tan inverse of cos theta upon the root of sin square theta. So I think most of the students can easily observe this. So नजरे नहीं पुनीत ने ये बताया यहाँ पे साइन थीटा, रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा है वो साइन थीटा बन जाएगा. सो अभी अपना नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, दिस इज tan इनवर्स ऑफ. ठीक है. सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ cos थीटा अपॉन साइन थीटा विच इज cot थीटा. करेक्ट. सो tan इनवर्स ऑफ cot थीटा, अगर आपको याद है मैंने बताया था ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यूज जब आते हैं, tan inverse of cot theta, it is not pi minus, मे बी आप टाइपिंग नहीं कर पाए, इट इज पाई बाय 2 माइनस फॉर्म में आएगा. ठीक है. यस, तो इट इज पाई बाय 2 माइनस थीटा इस फॉर्म में बन जाएगा. राइट. सो भी यहाँ पे थीटा का वैल्यू हम लोग रीसब्स्टिट्यूट करते हैं और डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमको जो है u का वैल्यू आ जाना चाहिए. एक आ गया मेरा कर्सर. So this is u equal to pi by 2
minus cos inverse of x. So now differentiate this with respect to x. Correct? तो ये हो गया du by dx which you will get as minus, correct, cos inverse का डेरिवेटिव में भी माइनस आएगा, minus 1 upon root of 1 minus x square. Of course minus minus will cancel, it will become plus. du by dx का वैल्यू आपको आएगा 1 upon root of 1 minus x square. So ये अपना du by dx का वैल्यू. तो एक पार्ट का डेरिवेटिव अभी हम लोग ने कर लिया, थोड़ा मेहनत लगा इसको करने के लिए, बट इट वॉज इन दैट डिफिकल्ट. आप देख सकते हो आराम से फॉर्मूला एडजस्ट हो जा रहा था. आप एक आध स्टेप कम लिख सकते हो, लाइक इफ यू डोंट राइट दिस स्टेप, रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा को आप डायरेक्टली साइन थीटा लिखो. इट रियली डज नॉट मेक मच डिफरेंस. आप ऐसा कर सकते हो, एक स्टेप कम लिखना कोई गलत नहीं होगा. ओके, सो ये जो है दिस इज du by dx. ओके, यस करेक्ट. फाइनल आंसर जो है -1/2 आना चाहिए. सो अभी इसका सेकेंड पार्ट को देखते हैं. सो यू कैन सी दिस इज sec इनवर्स ऑफ 1 upon 2x square minus 1. करेक्ट. तो अभी आपको पता है कि मैं sec का टर्म को अगर मैं ऐसे sec इनवर्स में अगर 1/x लिखा है तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ cos इनवर्स में, और ऐसा चेंज करते इसमें ये 1/x का जो है ये x बन जाता है. सो दिस इज व्हाट इज अ प्रॉपर्टी. आई कैन सी दैट sec इनवर्स में कुछ है, मैं उसको cos में अगर कन्वर्ट करता हूँ, सो आई कैन राइट इट एज 2x square minus 1. सो व्हाट इज दिस 2x square minus 1? ऐसे टाइम पे आपको cos थीटा सब्स्टिट्यूट करना चाहिए. सो ऑलरेडी हमने वो सब्स्टिट्यूशन का स्टेप लिखा हुआ है. सो आई कैन डायरेक्टली राइट इट एज 2 cos square थीटा minus 1. करेक्ट. तो मैंने पहले पेज पे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो x इक्वल टू क्या लिखना था हमको, cos थीटा. सो मुझे यहाँ पे और एक बार वो स्टेप लिखने का जरूरत नहीं है. आई कैन डायरेक्टली से दैट x इज इक्वल टू cos थीटा. सो 2 cos square थीटा minus 1, which is the formula for cos 2 theta. 2 cos square theta minus 1 cos 2 theta के 4 फॉर्मूला में से एक है. करेक्ट. सो जय ने इसका फाइनल आंसर भी बता दिया, यश ने भी पहले ही बता दिया था. पुनीत इज ऑल्सो एबल टू से कि यहाँ पे cos 2 theta यूज होगा. सो cos इनवर्स cos के साथ कट हो जाएगा, आपको बचेगा 2 theta. सो दैट इज 2 इंटू व्हाट इज दिस cos इनवर्स ऑफ x. सॉरी, सो ये हो गया 2 cos इनवर्स ऑफ x. अभी आप इसका डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x. सो यू विल गेट dv by dx इज इक्वल टू 2 इंटू cos इनवर्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन रूट ऑफ 1 minus x square. So now I can say what is finally that we had to find, that was du by dv. So this is du by dx upon dv by dx. Okay. So du by dx का वैल्यू क्या होगा, that will be 1 upon the root of 1 minus x square, जो हमने इससे पहले वाले पेज में लिखा है. एंड ये जो पार्ट है that is -2 upon the root of 1 minus x square. So obviously ये root of 1 minus x square क्या हो जाएगा, कट, और ये जो बचेगा that is -1/2. So this is the value of du by dv, it is -1/2. ये आपका फाइनल आंसर होगा. करेक्ट. फोर्थ का आंसर में आप tan थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे और आपको जो है फाइनल आंसर 2 आएगा. सो फोर्थ क्वेश्चन में भी आप समझ सकते हो द क्वेश्चन इज नॉट दैट डिफिकल्ट. थोड़ा सा आगे निकल गया शायद, जैसे सेकंड हम लोग ये वाला सम कर रहे थे, राइट. सो फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू जो है tan थीटा डालना चाहिए और कैंसिलेशन आराम से हो जाएगा. राइट. सो आपको 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, आपका आंसर फोर्थ का आंसर आएगा 2. सो लाइक आई सेड ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी मच सिमिलर, जो हम लोग पहले सम में कर रहे हैं या बाद के सम्स में कर रहे हैं. दे आर ऑल ऑलमोस्ट द सेम थिंग्स ओनली. ठीक है, इसमें कोई बहुत ज्यादा कोई चेंजेस नहीं होता है. एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. सो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करूं, बट आई विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम दिस एंड दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5. ओके, तो मैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी करता हूं. दैट इज बिकॉज उसमें एक टर्म है log of 3 to the base x, उसका डेरिवेटिव कैसे करना चाहिए उसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. एटलीस्ट कुछ स्टूडेंट्स को उसका एक्सप्लेनेशन जो है जरूरी है. नॉट ऑल स्टूडेंट्स
नीड टू लाइक, उनको सारे के सारे स्टूडेंट्स को उसका एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है, बट देर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स हु माइट गेट कंफ्यूज इन दैट क्वेश्चन, सो बेटर ही कि मैं उसको एक्सप्लेन करूँ. So you have to differentiate 3 raised to x with respect to log of 3 to the base x. Of course, this is a very easy question. But ये जो log of 3 to the base x का डेरिवेटिव करने का बात है, तो वो थोड़ा सा आपको समझना है. तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, let u be equal to 3 raised to x. Correct. So this is 3 raised to x log x. So differentiating with respect to x करने पे, so नाज़रीन इज राइट, du by dx का वैल्यू जो है दैट इज 3 raised to x log x नहीं होगा log 3. so this is 3 raised to x log 3, ये ऐसे हो जाएगा. ओके, सो दिस इज माय du by dx. तो du by dx तो एक ही स्टेप में आ गया. ओके, ये तो बहुत ही सिंपल था. अभी ये सेकंड पार्ट का करते हैं. सो यहाँ पे लेट v be equal to log of 3 to the base x. करेक्ट. तो यहाँ पे हमको यूज करना चाहिए log of a to the base b का फॉर्मूला. करेक्ट. तो इफ यू रिमेंबर वी हैड अ फॉर्मूला लाइक दिस, log a to the base b is log a upon log b. तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए log of 3 to the base x इस पार्ट के लिए. ओके, सो यहाँ पे हमको लिखना चाहिए दिस इज v इक्वल टू log 3 upon log x. So this is the change of base formula which we had seen in the 11th standard. Of course अभी आप देख सकते हो ये जो log 3 है, okay, this is a constant term. ठीक है, log x to the base 3, sorry log 3 जो है यहाँ पे ये जो टर्म है दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, तो वो बाहर आ जाएगा. डेरिवेटिव आप किसका करोगे, 1 बाय log x का. ठीक है, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x नाउ, सो दिस इज dv बाय dx इक्वल टू, सो log 3 जो है कांस्टेंट है, आपको जो डेरिवेटिव बचेगा वो किसका होगा, 1 बाय log x का होगा. करेक्ट. तो अभी सोच के बताओ डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय x क्या होता है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय x. डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय x माइनस 1 बाय x स्क्वायर. करेक्ट, पुनीत इज करेक्ट. तो यहाँ पे हो जाएगा -1 बाय x स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा. So if you are just going through the formulas continuously, you should be able to understand all this. और आपका जो है बार बार फॉर्मुला रिवाइज भी होता रहेगा. ठीक है, सो कीप द फॉर्मुलास विथ यू. पूजा इज ऑल्सो करेक्ट. सो यहाँ पे हमको आएगा -1 बाय log x का स्क्वायर हो जाएगा इनटू. करेक्ट. अभी मैंने किसका डेरिवेटिव लिखा, 1 बाय x के फॉर्म में लिखा है डेरिवेटिव. आई स्टिल हैव टू राइट द डेरिवेटिव ऑफ log x. तो यहाँ पे मुझे अभी भी लिखना पड़ेगा द डेरिवेटिव ऑफ log x. सो अभी यहाँ पे जो हमको टर्म आएगा वो क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू, ओके, सो dv बाय dx इक्वल टू माइनस log 3 अपॉन, इसमें आएगा log x का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x दैट इज 1 बाय x. सो इस पे log x का डेरिवेटिव आएगा. करेक्ट, नाज़रीन इज राइट, 1 बाय x आ जाएगा. सो ये जो है दिस इज du बाय dx, dv बाय dx दोनों फाइंड कर लिया. अभी देखो यहाँ पे du बाय dx था, यहाँ पे dv बाय dx सब मिल गया है. वी जस्ट हैव टू डिवाइड देम टू गेट द रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, सो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं, du बाय dv फाइंड करते हैं. सो व्हाट इज du बाय dv इक्वल टू, दैट इज du बाय dx अपॉन dv बाय dx. तो ये क्या था, दिस वाज 3 raised to x log 3 अपॉन, ओके, राइट. सो दिस इज माइनस log 3 अपॉन x इंटू log x का स्क्वायर. सो यहाँ पे मैं कैंसिल क्या कर सकता हूँ, करेक्ट. तो इफ यू ऑब्जर्व आई कैन कैंसिल ऑफ दिस log 3 पार्ट. सो log 3 क्या हो जाएगा, कट. सो log 3 कट हो गया. अभी क्या बच गया हमारे पास, ये जो टर्म है ये ऊपर आ जाएगा, 3 raised to x के साथ आएगा.
So I will get my final answer as minus 3 raised to x into log x the whole square. So this is the required answer that we will be getting, right? So यश ने इसको टाइप किया है, it is minus 3 raised to x into x log x the whole square. नाज़रीन ने भी टाइप किया है, of course she wants to type it as 3 raised to x. Okay. So it is 3 raised to x log x the whole square. So that will be your final answer. Rachel, any doubt? I think you are continuously raising hand. So यहाँ पे लास्ट स्टेप जो है, हाँ पूछो रेचल, व्हाट इज योर डाउट? इसमें क्या हो गया है, दिस इज जस्ट 1 बाय एक्स है जो यहाँ पे आपको लिखना था. तो log x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 बाय एक्स. ऑफकोर्स तो आप इसको x log x होल स्क्वायर लिख सकते हो, ये log 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. माइनस साइन कैसे आया? 1 प्लस साइन थीटा का दो फॉर्मूला है, एक है कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 द होल स्क्वायर एंड दूसरा है साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2 द होल स्क्वायर. बोथ आर लाइक आइडेंटिकल फॉर्मूलास. आप a प्लस बी द होल स्क्वायर लिखो या b प्लस ए द होल स्क्वायर लिखो, ओके, दे बोथ आर सेम. तो इसके लिए आपको दो फॉर्मूला से वही सेम टर्म्स को आपने आगे पीछे लिखा. माइनस साइन कैसे आया? ठीक है, सो डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर. सो डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय लॉग एक्स का क्या होगा? ओके, वो भी वही फॉर्मूला से आएगा, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर पैटर्न में ही उसका आंसर आएगा. बट ऑफकोर्स आपको इसके आगे क्या लिखना पड़ेगा, द डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स. सो दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग माइनस. ओके, सो माइनस साइन पिछले वाले पेज पे आप देख सकते हो 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव की वजह से आ रहा था. ओके, सो माइनस 1 बाय लॉग एक्स होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग. सो होपफुली सबको ये क्लियर है. कीप द फॉर्मुलास विद यू एवरीवन. ठीक है, आप जब तक फॉर्मुलास पढ़ रहे हो, रीड करते रहते हो, तब तक आपको स्टेप्स जो है क्लियरली समझता रहेगा. ठीक है, अगर आप पेज टर्न करके या फॉर्मुला ढूंढने में ही आलस करोगे तो ऑब्वियसली वो सॉल्व करने में कितना आलस आएगा. सो यू कैन जस्ट इमेजिन, अगर आप फॉर्मुलास देख नहीं पा रहे हो अभी, ऐसे सामने सामने ढूंढ नहीं पा रहे हो, तो how are you going to like sit and solve those questions जिसमें वही सब फॉर्मुलास बार बार यूज होते. सो एटलीस्ट जस्ट फॉर्मुलास सामने रखो और गो थ्रू करो उसको. आप टाइप नहीं करते हो, एटलीस्ट देखो उसको तो भी चलेगा. ओके, सो आई थिंक यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन 6, 7 एंड 8. 7th क्वेश्चन में आपको बस थोड़ा सा लॉगरिथमिक टाइप से सॉल्व करना है, दैट इज बाय अप्लाइंग लॉग. ओके, अभी तक आई थिंक वी हैव सीन 22 बेसिक फॉर्मुलास ऑफ 11th स्टैंडर्ड. एक इनवर्स फंक्शन का फॉर्मूला dx बाय dy का. हाँ, log x रेज टू -1 करके भी लिख सकते. सो फिर 6 फॉर्मुलास हमने इनवर्स फंक्शंस का किया, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव के लिए. सो दैट मेक्स इट 29 फॉर्मूला. देन पैरामेट्रिक का एक फॉर्मूला. सो अभी तक हमने 30 फॉर्मुलास किया है, मतलब बेसिकली. या सो टिल नाउ वी हैव डन 30 फॉर्मुलास ऑफ डेरिवेटिव. ट्रिग्नोमेट्री का मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ. ओके, देयर आर मेनी मोर. यस, u इक्वल टू होगा x रेज टू x एंड देन आप क्या करोगे, अप्लाइंग लॉग एंड देन उसका डेरिवेटिव. सो यू विल गेट du बाय dx बाय दैट मेथड. देन आप dv बाय dx के लिए भी v को आप x रेज टू sin x करके लिखोगे. हाँ पूछो पुनीत, 1 माइनस साइन थीटा के लिए क्या पूछना आपको? उसका फॉर्मूला जो है उसका भी दो ही फॉर्मूला होगा, करेक्ट. सो यू कैन इमेजिन लाइक 1 माइनस साइन थीटा, इसका आंसर भी सेम बेसिस में cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 द होल स्क्वायर आप ऐसे लिख सकते हो. या
आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 द होल स्क्वायर। सिंपल रीजन बिकॉज अगेन वही है कि a माइनस बी द होल स्क्वायर लिखो या b माइनस ए द होल स्क्वायर लिखो, ये दोनों का आंसर एक्चुअली सेम आता है। इफ यू वांट यू कैन जस्ट एक्सपांड एंड चेक a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 2ba प्लस a स्क्वायर। देखो आप ये दोनों सेम टर्म्स। सो अगेन द रीजन इज सेम, cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखो या साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 द होल स्क्वायर लिखो, दे बोथ आर एक्चुअली द सेम वैल्यूज। a माइनस b द होल स्क्वायर इज b माइनस a द होल स्क्वायर। आई थिंक देयर इज एन अपडेट ऑन वेबएक्स, इस वजह से थोड़ा कर्सर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा। एनीवे, सो अभी हम लोग जो है फाइनली वी कैन नाउ गो टू द एक्सरसाइज 1.5 which is related to the double derivative and the higher order derivative. Of course, अभी हमारे current syllabus के लिए we can say that we are not having higher order derivatives. We will be having only double order derivative या double derivatives. Okay. तो फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर सिर्फ दो ही ऑर्डर के डेरिवेटिव्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। nth ऑर्डर डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन जरूर है, बट दैट is coming into the deleted portion, so we don't have to worry about that. So let us just understand how to write the higher order derivatives. ठीक है, तो इसको लिखते कैसे है, इसको पढ़ते कैसे है, वो सब। So everyone knows कि अगर मैंने डेरिवेटिव ऑफ y लिखा, so that is dy by dx, और इसको हम लोग बोलेंगे this is the first derivative, or I can say it is a first order derivative. Okay. तो ये dy by dx जो है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। अब इसका मैं एक और डेरिवेटिव फाइंड करता हूं। सो इफ आई फाइंड डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव, मतलब जो हमने डेरिवेटिव किया है उसका एक और डेरिवेटिव, सो डेरिवेटिव ऑफ dy by dx। सो इसका वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं, वी राइट इट एज डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखने का तरीका क्या है, दैट इज डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, एंड ऑफ कोर्स दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और यू कैन जस्ट से इट इज द सेकेंड डेरिवेटिव। इसमें किसी को कोई डाउट है, सेकेंड डेरिवेटिव या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब क्या होता है? जो डेरिवेटिव हमने फाइंड किया है हम उसी का एक और डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यू माइट हैव सीन दिस इन आई थिंक ऑसिलेशंस चैप्टर में, सिंपल हार्मोनिक वेव्स से रिलेटेड आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हो, राइट? सो इन ऑसिलेशंस, इन व्हाट इज दैट, स्टेशनरी वेव्स और रेजोनेंस से रिलेटेड भी आई थिंक आपको डबल डेरिवेटिव आता है। सो ऑसिलेशंस के चैप्टर में बेसिकली आपने ये सीखा होगा, इट इज पॉसिबल दैट यू माइट हैव स्टडीड इट इन सर्कुलर मोशन, वहाँ पे आप वेलोसिटी एक्सेलरेशन का जब डेरिवेटिव्स करते हो तो वहाँ पे भी आपने ये सब, हो सकता है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वहाँ पे भी आपने सीखा होगा। सो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज बेसिकली द डेरिवेटिव ऑफ द डेरिवेटिव। ओके, तो इसको लिखते कैसे वो, ओके वही लेसन चल रहा है। हाँ, तो आपको वहां पे भी ये डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है दिखाई देगा। सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ द डेरिवेटिव, सो डी स्क्वायर वाई बाय डी स्क्वायर। अभी अगर मैंने इसका डेरिवेटिव लिखा, सो इफ आई एम फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब। सो दिस इज हाउ वी राइट द थर्ड डेरिवेटिव और द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, तो इस तरीके से हाँ, 2 टाइम डिफरेंशिएट हो सकता है, 3 टाइम भी हो सकता है, n टाइम्स भी डिफरेंशिएट हो सकता है। ओके, मेनी अ टाइम्स डेरिवेटिव्स हैव गॉट फिजिकल मीनिंग एज वेल। ओके, सो कभी कभी फिजिकल मीनिंग भी होता है डेरिवेटिव का, लाइक डिस्प्लेसमेंट का आप डेरिवेटिव करोगे तो यू आर गेटिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव करोगे तो यू आर गेटिंग एक्सेलरेशन। सो देयर इज फिजिकल मीनिंग फॉर दैट आल्सो। ओके, थर्ड एक्सेलरेशन का डेरिवेटिव करोगे तो यू विल बी गेटिंग जर्क। So all that
Okay, everything has got a physical meaning as well. Sometimes, not always, all the derivatives have got physical meaning, but most of the derivatives that we can study, okay, some of them do have physical meaning as well. Okay, हाँ एक और पॉइंट है यहाँ पे. तो ये जो अपना फर्स्ट डेरिवेटिव था, इसको एक और तरीके से लिखते थे, दैट वाज एफ डैश एक्स. ओके, तो इस सेकेंड डेरिवेटिव को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग एफ डबल डैश एक्स करके भी लिख सकते हैं. ये जो थर्ड डेरिवेटिव है उसको हम लोग एफ ट्रिपल डैश एक्स करके भी लिख सकते हैं. ऑफकोर्स अगर और एक डेरिवेटिव होगा तो हम उसको ऐसे रोमन में 4 लिखते हैं. सो दिस इज सेइंग दैट दिस इज अ फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव. एफ 4 अभी डैश नहीं डाल सकते 4 बार, तो रोमन में 4 लिखते हैं एंड फिर एक्स. सो दैट इज द फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव. ओके, ऑफकोर्स इफ आई एम राइटिंग इट इन द लेबनिज नोटेशन, सो दिस विल बी डी रेज टू 4y अपॉन डी एक्स रेज टू 4 ऐसे हो जाएगा. सो ये एफ रेज टू 4x और ऐसे सब. अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि ये हम लोग सम्स के बीच में काफी बार देख सकते हैं. दैट dy बाय dx द होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ठीक है, तो ये दोनों के बीच में आप कंफ्यूज नहीं करना. डेरिवेटिव का डेरिवेटिव करना और डेरिवेटिव का स्क्वायर करना, दे बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स. ओके, आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू. ओके, सपोज आई हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस से 2x. ओके, सिंपल सा टर्म. नहीं, एक्स क्यूब प्लस 2x नहीं रखता, मैं एक्स क्यूब प्लस 2 लिखता हूँ बस. ओके, सो एक्स क्यूब प्लस 2. सो दिस इज माई क्वेश्चन ओवर हियर. अभी इसका एक डेरिवेटिव लेते हैं. ठीक है, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. सो आई विल गेट dy by dx and what is this value equal to? This is 3x square. करेक्ट. अब इसका मैं एक और डेरिवेटिव लेता हूँ. सो 3x स्क्वायर का एक और डेरिवेटिव. सो दिस इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. ऑफकोर्स अभी 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x. तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज 6x हो जाएगा. हाँ, मतलब 3 इंटू 2 करने पे. अब सोच के देखो, इफ आई हैड स्क्वायर्ड दिस टर्म, ठीक है, इसका अगर मैंने क्या लिया होता? स्क्वायर. ठीक है, तो इसका अगर मैंने क्या लिया होता? स्क्वायर किया होता. तो आई विल गेट dy बाय dx द होल स्क्वायर. तो इसका स्क्वायर क्या आएगा आपको? 9x रेज टू 4 आएगा. कैन यू सी दैट दीज टू आर डेफिनेटली नॉट इक्वल. एक का डेरिवेटिव करने पे, मतलब 2 डेरिवेटिव करने पे आपको 6x आ रहा था, और dy बाय dx का होल स्क्वायर करने पे आपको क्या आया था? दैट वाज 9x रेज टू 4. सो दीज टू आर डेफिनेटली नॉट द सेम टर्म्स. फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ द डेरिवेटिव is nowhere close to finding the second order derivative. Okay, so डबल डेरिवेटिव करना एक अलग ही चीज है और डेरिवेटिव का स्क्वायर करना एक अलग ही चीज है. तो आप दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं करना. ठीक है, आप कभी देखोगे dy बाय dx होल स्क्वायर कहीं पे सम में दिखा हुआ, डोंट थिंक दैट इट इज द डबल डेरिवेटिव एंड इट कैन बी कैंसल्ड. लेटर ऑन यू विल सी दैट थ्रू दैट टाइप के सम्स में आपको ये काफी कॉमनली दिखेगा. ओके, सो मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स मेक दिस मिस्टेक. तो इसके लिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि द डबल डेरिवेटिव एंड द स्क्वायर ऑफ द डेरिवेटिव आर नॉट द सेम टर्म्स. दे आर टू वेरी वेरी डिफरेंट टर्म्स. ओके, let us now start with the exercise 1.5 and we are supposed to find the double derivatives. सब में बोला होगा, देखो आप, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. या यहाँ पे देखो शो दैट के टाइप के सम्स में. अच्छा, ये y2 y1 जो लिखा है वो भी डबल डेरिवेटिव है. देखो आप, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, शो दैट में. तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में उसका मेंशन होगा कहीं ना कहीं पे दैट वी आर सपोज्ड टू फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ओके, यहाँ पे एक और मेंशन कर देता हूँ मैं. ये जो है एफ डैश एक्स वगैरह जो है, अभी इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग y1 लिख सकते हैं, सेकेंड को हम लोग y2 लिखते हैं, थर्ड को हम लोग y3 लिखते हैं ऐसे. सो दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ राइटिंग द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स. ओके, सो एफ डैश एक्स
एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स। उसका एक और तरीका है कि y1 y2 y3 ऐसा भी लिखा जाए। ओके, सो इन दिस क्वेश्चंस यू माइट सी क्वेश्चंस ऑफ और टर्म्स ऑफ दैट फॉर्म। सो you'll get y इक्वल टू, देखो आप क्या लिखा है, 2x रेज टू 5 माइनस 4x क्यूब माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9। ओके, सो इट इज 2x रेज टू 5 माइनस 4x क्यूब माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, तो ये हमारा दिया हुआ क्वेश्चन है। अभी फिलहाल शिवम वी आर नॉट ऑल्सो लाइक अवेयर अभी फिलहाल अपना स्टेट पैटर्न कैसे होगा, बिकॉज सीबीएसई में एमसीक्यू पैटर्न्स में टेस्ट कर रहे हैं। इट इज really not, I'm like we are not at a stage to say like what can happen in our boards. Okay, but most probably ऐसा ही कुछ आपके साथ भी conduct करेंगे। Okay, it is possible that a test might be conducted mid year or whenever there is a possibility of conducting an exam with, मतलब जहाँ पे केसेस काफी कम है, तो ऐसे केस में हो सकता है कि there might be a test which is conducted and later on probably by the mid of the next year or maybe May there might be another which is conducted, so that there would be a uniform pattern in which the students can be graded. Okay, so possibly same pattern हम लोग भी follow करें, मतलब state में भी follow हो, but still okay, आपको अभी से ही effort डालने start करना चाहिए, only then some results can be achieved. So like I say, अभी से ही आपको effort डालना चाहिए। Okay, so start करो आप, बट एक तरीके से आपके साथ ये गलत है कि कुछ आइडिया भी नहीं दे रहे आपको कि क्या होगा एंड ऑल। दैट इज ऑल्सो डेफिनेटली समथिंग दैट आई फील इट इज वेरी रॉन्ग। स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना है तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है वो भी आपको नहीं पता अभी फिलहाल। सो एनीवे, यहाँ पे मैं क्या बोला था, दैट इज 2 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जब ऊपर आ जाएगा ना तो उसको मैं एक्स रेज टू माइनस 2 करके कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है, सो दैट इज वन थिंग दैट आई विल चेंज इन दिस, बिकॉज अभी हम लोग जब डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। ओके, सो यहाँ पे दिस इज 2 इंटू, अभी एक्स रेज टू 5 का डेरिवेटिव होगा, करेक्ट। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू 5? क्या लिखना चाहिए हमको डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू 5 को? डबल डेरिवेटिव करना है, करेक्ट। नाजरीन ने इसका फाइनल आंसर बता दिया, वेरी गुड। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल नहीं मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव बता दिया। सो दिस इज 5x रेज टू 4 माइनस 4 इंटू, ऑब्वियसली ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अभी यहाँ पे आप x रेज टू n का फॉर्मूला डालना, करेक्ट। पुनीत ने भी इसका आंसर बताया, 5x रेज टू 4 था, नेक्स्ट वाले का ऑब्वियसली 3x स्क्वायर होगा, एंड दिस विल बी n इंटू x रेज टू n माइनस 1, and of course the constant will be differentiated, it will become 0. So ये हो गया 2 5s are 10 x raised to 4, 4 3s are 12 x square, माइनस इंटू माइनस प्लस 4, और ये हो जाएगा x raised to माइनस 3 हो जाएगा। ओके, so this is dy by dx। ओके, अब इसका एक और डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग वंस अगेन दिस विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, करेक्ट। अब ये सिंपल था जैसे हम लोग ने पहले किया वैसे ही होगा, 10 इंटू, अभी x रेज टू 4 का आप डेरिवेटिव लिखोगे, करेक्ट। नाजरीन ने इसका भी आंसर बताया, तो दिस इज 4x क्यूब माइनस 12 इंटू, यश ने भी इसका आंसर बताया, वेरी गुड। तो इट इज 2x प्लस 4 इंटू, इसका आंसर होगा n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, ऐसे हो जाएगा। तो ऑफकोर्स माइनस 3 माइनस 1 इज गोइंग टू बिकम माइनस 4, 10 इंटू 4 इज 40x क्यूब माइनस 24x माइनस 12, और ये x रेज टू माइनस 4 हो जाएगा। अब ये x रेज टू माइनस 4 को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इट इज बेटर दैट आई राइट x रेज टू माइनस 4 एस 1 अपॉन, करेक्ट। तो उसको मैं डिनोमिनेटर पे लिख देता हूँ, x रेज टू 4 करके लिखता हूँ। सो x रेज टू माइनस 4 को मैं नीचे लिखता हूँ, एंड विल बिकम अपॉन x रेज टू 4। सो दैट इज द
second order derivative that we wanted. So it is 10x cube minus 24x minus 12 by x raised to 4. Is this clear for everyone? So second order derivative में ऐसे ही बस सिंपल सा डेरिवेटिव करना है दो बार. Oh sorry 40 बोल के मैंने 10 लिख दिया. Yeah just a second. Yeah अभी ठीक है. हाँ करेक्ट. यहाँ पे आपको सेकेंड डेरिवेटिव जब लिख रहे हो तो आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर ही लिखना चाहिए यहाँ पे. दैट इज करेक्ट. तो सेकेंड डेरिवेटिव लिख रहे हैं ना तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर. ओके आपने डी वाई बाई डी एक्स लिखा है क्या? हाँ तो आप वो करेक्शन करना डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखना. दैट इज इम्पोर्टेंट. तो पहला डेरिवेटिव तो डी वाई बाई डी एक्स था. दूसरा डेरिवेटिव जब आप लिखोगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखना. दैट इज इम्पोर्टेंट. ओके लास्ट सेकंड स्टेप सेकंड लास्ट स्टेप. ओके सो यहाँ पे देखो क्या हो गया. इसमें एक्स रेज टू 4 का आपने डेरिवेटिव लिखा. सो एक्स रेज टू 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4x क्यूब. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखा. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x. और एक्स रेज टू माइनस 3 का डेरिवेटिव आपने फॉर्मूला क्या फॉलो करना है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1. सो दैट इज माइनस 3 इंटू एक्स रेज टू माइनस 3 माइनस 1. सो वो माइनस 4 हो जाएगा. ऑफकोर्स वो माइनस 4 को मैंने नीचे लिख दिया है. इज दिस क्लियर? एक्स रेज टू 4 में भी आपने एक्स रेज टू n का ही फॉर्मूला डालना. n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1. यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? किसी को भी इसमें कोई प्रॉब्लम है? एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस? ठीक है. तो सेम आप देख सकते हो यहाँ पे भी वही होगा. बट यहाँ पे क्या है दैट इज u इंटू वी. तो दो बार आपको जो है डेरिवेटिव करना पड़ेगा. सो एक बार आप e रेज टू 2x मतलब u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करोगे e रेज टू 2x इंटू tan x के लिए. एंड देन जो आंसर आएगा उस पर भी आप फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे. तो ऑब्वियसली यू विल बी यूजिंग वंस अगेन u इंटू वी फॉर्मूला. ठीक है. तो यहाँ पे आपको u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करना है बट दो बार. ओके तो e रेज टू 2x tan x का डेरिवेटिव होगा. फिर और एक टर्म जो डेरिवेटिव है दैट इज सेक्स स्क्वायर एक्स आएगा उसके डेरिवेटिव में और tan x वगैरह. तो आपको दो बार जो है u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करना है. तो आई विल सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन भी बहुत सिमिलर है. तो थर्ड आप ट्राई करना. आई विल सॉल्व द सेकंड वन. So it is e raised to 2x into tan x. So यहाँ पे y इक्वल टू. तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. So this is dy by dx equal to. So this is our u into v type of question. तो अभी इसमें क्या होगा e raised to 2x के साथ you will get the derivative of tan x plus tan x के साथ you will get the derivative of e raised to 2x. okay of course इसमें भी composite rules use होंगे. so e raised to 2x में tan x का derivative that is sec square x. okay plus tan x के साथ e raised to 2x का डेरिवेटिव. इसमें क्या होगा ऑब्वियसली e raised to 2x का डेरिवेटिव में यू विल गेट e raised to 2x. लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दैट यू विल आल्सो राइट द डेरिवेटिव ऑफ 2x. ठीक है भूलना नहीं. तो यहाँ पे आपको इसका भी डेरिवेटिव लिखना चाहिए. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 2x? ऑब्वियसली दैट इज इक्वल टू 2. करेक्ट. तो यहाँ पे कॉमन भी मैं निकाल लेता हूँ. सो आई कैन सी e raised to 2x e raised to 2x. So I can take out e raised to 2x as my common term. So अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? We will get a sec square x and ये जो डेरिवेटिव है ऑब्वियसली इसका जो 2 है वो बाहर आ जाता है. So this makes it 2 tan x. So this is my dy by dx term. करेक्ट. तो यहाँ पे अभी हमने dy by dx लिखा. अब मैं इसमें फिर से u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करूंगा. तो ये मेरा u का टर्म है e raised to 2x और v का टर्म मेरा पूरा ब्रैकेट है
that is sec square x plus 2 tan x. So the entire bracket is going to become our b term. So let us now differentiate this with respect to x, second derivative. तो यहाँ पे आपको क्या लिखना चाहिए? It is d square y by dx square, ध्यान में रखना. And this is u into v formula, correct? तो यहाँ पे क्या होगा? e raised to 2x के साथ we will get the derivative of sec square x plus 2 tan x plus sec square x plus 2 tan x के साथ you will get the derivative of e raised to 2x. Okay, पहले u into v का फॉर्मूला अप्लाई किया है, अभी सिंगल टर्म्स का डेरिवेटिव हो जाता है. सो यू कैन सी आई हैव टू राइट द डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर एक्स. तो पहले तो सेक स्क्वायर एक्स में सोच के बताओ पहले किसका फॉर्मूला यूज करोगे आप? सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव लिखना है, पहले कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? सेक स्क्वायर एक्स में स्क्वायर का, करेक्ट. सो दैट इज 2 sec x करके लिखोगे, राइट. सो दिस इज e raised to 2x, राइट. सो नाजरीन, पुनीत, सुमित, इन्होंने जो है करेक्ट फॉर्मूला आइडेंटिफाई किया है. सो यू विल गेट दिस इज 2 sec x इनटू, ऑब्वियसली यहाँ पे आपको क्या लिखना है? द डेरिवेटिव ऑफ sec x एज वेल. ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेरिवेटिव ऑफ sec x भी लिखना पड़ेगा, प्लस 2 इंटू tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा, ऑब्वियसली दैट इज जस्ट sec square x, प्लस यहाँ पे आपको आएगा sec square x plus 2 tan x into the derivative of e raised to 2x. Now what is the derivative of e raised to 2x? Obviously अभी हमने देखा उसका डेरिवेटिव e raised to 2x into उसके साथ क्या होगा? 2x का डेरिवेटिव, that is 2. So once again I can take out, okay, what all common. तो चेक करके देखो, यहाँ पे देखो e raised to 2x कॉमन है, एंड यहाँ पे भी मैं e raised to 2x कॉमन निकाल सकता हूँ. इसमें अगर ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे एक 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब यहाँ पे 2 बाहर आ सकता है, और यहाँ पे भी तो 2 है, तो मैं 2 e raised to 2x को कॉमन ले सकता हूँ. ओके, फ्रॉम द एंटायर लाइन, ओके, इफ यू ऑब्जर्व वी कैन टेक आउट 2 e raised to 2x. दैट एंटायर टर्म 2 e raised to 2x कैन बी टेकन आउट एज आवर कॉमन टर्म. तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? मेरा टर्म जो कॉमन है दैट इज 2 e raised to 2x. So this entire term is taken out common. पूरे सभी टर्म्स में 2 और e raised to 2x था. अभी देखो यहाँ पे क्या बच गया? करेक्ट, तो यहाँ पे बच गया है sec x, और ये डेरिवेटिव ऑफ sec x जो था sec x into tan x. सो यहाँ पे आई विल गेट, पहले से यहाँ पे एक sec x था, इंटू sec x का भी डेरिवेटिव उसके साथ था, तो आई विल राइट इट एज sec x into tan x प्लस, ओके, प्लस यहाँ पे क्या था? देखो यहाँ पे मैंने ये 2 को कॉमन निकाल दिया, करेक्ट. तो 2 तो बाहर चला गया, तो सिर्फ sec square x बच जाएगा. तो यहाँ पे आई हैव गॉट प्लस sec square x प्लस आगे का जो टर्म था, ठीक है, उसमें सिर्फ वो ब्रैकेट ही था, बाकी 2 e raised to 2x तो चला गया था, करेक्ट. तो sec square x plus 2 tan x है जो रह गया. सो आई विल बी लेफ्ट विथ sec square x plus 2 tan x. तो यहाँ पे से जो बचेगा sec square x प्लस 2 tan x. तो यहाँ पे देखो sec square x प्लस sec square x, ऑब्वियसली ये हो जाएगा 2 sec square x हो जाएगा. sec x into sec x भी sec square x आप लिखोगे, so this is 2 e raised to 2x sec square x into tan x plus 2 sec square x plus 2 tan x. So this is the second order derivative of this system. तो ये अपना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, d square y by dx square. Is this clear for everyone? सबको ये समझ में आया कैसे करना है? So it isn't that difficult, सिंपल सा ही था वैसे. Okay. लास्ट स्टेप, ओके. तो देखो यहाँ पे ये जो sec x है sec x के साथ मल्टीप्लाई होगा,
तो sec x into sec x क्या हो जाता है? So that becomes sec square x into इसके साथ क्या था tan x. sec square x plus sec square x जुड़ गया तो हो गया 2 sec square x और एक 2 tan x बच गया था पहले से ही 3 tan x. How is that going to become 3 tan x? अगर आप इसका सोच रहे हो ये ऐड इसको ऐड करने वाले हैं, नहीं ऐसे ऐड नहीं कर सकते ना, ओके, बिकॉज वो वाले tan x के साथ कुछ तो टर्म था. आई कैन नॉट लाइक जस्ट ऐड दोस टर्म्स. सो sec square x tan x, आप चाहो तो tan x कॉमन निकालो और उसको आप sec square x plus 2 करके लिखो, दैट इज ओके. ठीक है, आप tan x चाहे तो कॉमन निकाल सकते हो, या sec square x आप कॉमन निकालो तो tan x plus 2 करके लिख सकते हो. दैट कैन बी डन, बट यू कैन नॉट ऐड 2 tan x टू sec square x tan x. तो ऐसा एडिशन नहीं हो सकता. ऐसा करना है तो आप कॉमन निकालो, दैट इज ओके. ओके, सो यहाँ से जो है आप थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो. यू शुड बी एबल टू सॉल्व दोस टू क्वेश्चंस. सो यहाँ पे अभी हम लोग जो है log ऑफ log x का पार्ट को करते थे. e raised to 2x कहाँ चला गया? e raised to 2x कहीं पे गया नहीं, आपने बाहर निकाल के यहाँ पे रखा. देखो यहाँ पे 2 e raised to 2x. ओके, इट इज नॉट गॉन. यू सी, देखो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे से 2 e raised to 2x को कॉमन निकाला, करेक्ट, तो बचा क्या ये पार्ट में sec square x plus 2 tan x ही बचेगा ना. तो अगर मैंने e raised to 2x और 2 को मैंने कॉमन निकालना है, तो यहाँ पे भी देखो e raised to 2x और 2 ये सबको अगर मैंने कॉमन निकाला तो बाकी क्या बच गया वही मैंने लिखा है. ओके, सो आई डिड नॉट लाइक, मतलब मैंने e raised to 2x को गायब नहीं कर दिया, मैंने उसको कॉमन निकाल के बाहर एक ही e raised to 2 e raised to 2x को जो है बाहर रख दिया. ओके, तो जो अंदर वाला पार्ट था कॉमन निकालने के बाद में जो था, ओनली दैट मच वाज लेफ्ट जो हम लोग ने अंदर लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर. इज दिस डाउट क्लियर नाउ? आप कंपेयर करके देखो यहाँ पे, आप कंपेयर करके देखो तो आपको समझ में आएगा. देखो यहाँ पे e raised to 2x और 2 जो है चला गया तो भी यहाँ पे sec square x plus 2 tan x भी बच जाता है. तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, देखो sec square x plus 2 tan x, ये पार्ट sec square x plus 2 tan x. ठीक है, और फर्स्ट पार्ट में जो था वो तो डेरिवेटिव वगैरह लिखने के बाद में, तो डेरिवेटिव ऑफ sec x जो था sec x into tan x, sec into sec square x और tan x ऐसे सब हो जाएगा. इज इट क्लियर नाउ? ओके, ठीक है, तो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं. वी हैव डन क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर टुडे. So in the next lecture when we are going to start, most probably I mean like थोड़ा सा parametric questions है, थोड़ा सा lengthy वाले, but most of the questions जो show that type के है, they are not that difficult, they are quite easy to understand. And you have seen कि जो prove that type के sums होते हैं वो actually ज़्यादा easy रहते हैं. एक दो questions है जो थोड़े से different है from the usual questions, so that might take a little explanation, but most of the questions that you will see, they are quite easy and can be differentiated quite easily. ठीक है, सिर्फ पैरामेट्रिक डेरिवेटिव का डबल ऑर्डर जो डेरिवेटिव होता है पैरामेट्रिक टाइप में, दैट इज स्लाइटली डिफरेंट देन द यूजुअल डेरिवेटिव्स. तो वहां पे ही थोड़ा हमको टाइम लगेगा जस्ट वो सेकेंड क्वेश्चन समझने के लिए, एंड बाद में जो प्रूव दैट टाइप का सम्स हो तो काफी इजी लगेगा. फोर्थ क्वेश्चन हैज बीन डिलीटेड, दैट इज nth ऑर्डर डेरिवेटिव. Of course, we will do that for the students who are taking JEE और entrance. बाकी के स्टूडेंट्स के लिए हमको nth ऑर्डर डेरिवेटिव करना जरूरी नहीं है. ठीक है, सो आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे. आज के लिए हम लोग इतना ही कर रहे हैं. नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके, और माइट फिनिश विद दिस चैप्टर, बट थोड़ा सा चांसेस कम लग रहा है मुझे. मे बी एक 2 आवर का लेक्चर रहेगा तो शायद हो जाए, बट अदरवाइज 1.5 आवर में शायद नहीं हो पाएगा. सो विल ट्राई टू फिनिश इट, बट अगर नहीं हुआ तो एक और लेक्चर में डेफिनेटली हो जाएगा. सो एक दो लेक्चर बाकी है बस डेरिवेटिव खत्म होने के लिए. यू कैन सी द चैप्टर टुक अ लॉट ऑफ टाइम, बट
ऑफ कोर्स आपका जो अभी मेहनत है अभी आपका स्टार्ट होता है. So it really does, like I said, it really does not matter how many sums I solve. I might solve 15, I might solve 50. But if you do not solve even 5 questions, obviously nothing is, like, all that I have done is just wasted. So आप लोग practice करो, आप लोग अपने method से इसको try करो. Yes, of course, this chapter is very lengthy. Integration इसके बाद में जो है मतलब third chapter, that is also quite lengthy. But the chapters in between, they are quite small. Okay, you will see that applications or derivatives वो काफी जल्दी खत्म हो जाएगा. काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है वैसे. ओके, काफी जल्दी वो खत्म हो जाएगा. यू विल सी दैट कौन सा टॉपिक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, दैट इज हार्डली लाइक वन एक्सरसाइज. एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन वो भी एक ही एक्सरसाइज है. तो वो सब चैप्टर्स एक एक दो घंटे में ही खत्म हो जाता है. तो इट इज लाइक 2 hours 3 hours में चैप्टर खत्म. ये और इंटीग्रेशन, बस यही 2 चैप्टर्स है जो सच में हमको टाइम लगता है फिनिश करने के लिए. And rest all the chapters you will find that they are quite easy to understand and they are quite small as well. ये जो चैप्टर है this is of 10 marks. I thought I had said all this. ठीक है, मैं एक बार फिर से सेंड करता हूँ. मतलब सारे चैप्टर्स का जो वेटेज है वो वाला जो एक पेपर है वो मैं सेंड करता हूँ. ठीक है, तो सारे चैप्टर्स का वेटेज मिल जाएगा. दिस चैप्टर कैरीज जैसे 10 मार्क्स आई गेस, नहीं 10 नहीं 9 मार्क्स. Okay, so this chapter carries 9 marks. Application of derivatives also carries 9 marks. Integration carries 10 marks. तो थोड़ा सा ज्यादा वेटेज है इसमें. इसमें से 9 marks के लिए you can have a 2 mark question, a 3 mark question and a 4 mark question. Okay, हाँ 4 mark का एक क्वेश्चन फिक्स ही रहता है. So 2, 3 और 4 marks. 2 marks का जनरली एक MCQ आता है इसमें से. 3 marks का एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, 4 मार्क का भी एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा. ओके, बट मोस्टली ऐसे ही होता है इस पैटर्न में. डेरिवेटिव्स में से 2 मार्क्स का एक MCQ, 3 मार्क्स का एक मेन क्वेश्चन एंड 4 मार्क का भी एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ ऐसे. सो दैट इज हाउ द पैटर्न जनरली इज फॉर दिस चैप्टर. ओके, सो फिर कभी हम लोग इसको और डिस्कस करेंगे. आई थिंक हाँ हमारा थियरम्स भी डिस्कस करना बाकी है 2-3, बट ठीक है चलेगा, हम लोग बाद में भी ले सकते हैं. थियरम्स का एक अलग से लेक्चर कर लेंगे. So this is it for today from my side, everyone. Okay, so practice well. If you practice well, you should be able to like understand this chapter and score very well also. ठीक है, ये चैप्टर एक्चुअली काफी स्कोरिंग है. हाँ, थियरम्स भी इम्पोर्टेंट है. आपको 3 मार्क्स का थियरम आने का चांसेस रहता है. कभी कभी 3 मार्क का जो है थियरम्स का डेरिवेशन और उसके साथ कोई एक क्वेश्चन अटैच करके 4 मार्क का एक क्वेश्चन बनाया जाता है. तो ऐसा भी होता है बहुत रेयरली 3 मार्क का, लेकिन एक थियरम तो आना बहुत ही लाइक पॉसिबल है. डेरिवेटिव से एक थियरम आएगा एंड इंटीग्रेशन या डेफिनेट इंटीग्रेशन में से एक थियरम आएगा. सो 6 मार्क का तो पेपर 2 में से थियरम्स आता ही है एंड 6 मार्क का ही पेपर 1 में से भी थियरम्स आते हैं जनरली. सो पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर से हो गया, वेक्टर्स में से हो गया, जनरली थियरम्स जो है आने का चांस वहां से भी है. So close to around 12 marks is for theorem, 6 marks from paper 1 and 6 marks from paper 2. Rarely ऐसा होता है कि 3 theorems पूछा गया पेपर 2 में से, बट ऐसे भी होता है. Okay. So this is it for today from my side, everyone. Okay, next lecture हम लोग continue करेंगे. I'll send this lecture notes as soon as possible to ma'am. ठीक है. So next lecture जब हम लोग continue करेंगे, we'll almost finish with the chapter. Most probably we'll finish with the chapter. Okay. So this is it, everyone. Thank you for your cooperation. Next lecture आप practice करना, formulas वगैरह पढ़ना. Okay, efforts डालो तो आपको उसका result भी मिलेगा. Okay. This is it, everyone. Thank you.